Okay, so good morning students, and let's continue our chapter number 6 that is going on in our class, and that chapter is manufacturing industries. Now we shall continue our chapter, and our topic that we will start today is agro-based industries. Okay, so please take out your books on page number 67, and we shall continue our topic that is the agro-based industries. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, आज हम ये टॉपिक विल स्टार्ट। देखो बेटा, इसके नाम से क्लियर हो रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वी हैड आल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट आर गेटिंग देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल योर कॉटन इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, ओके, योर रबर industry, etc. All these industries are getting their raw material from the agriculture, so that's why these are known as agro based industries. Okay, next, second part, the textile industry. Now textile industry, okay, next topic. Next topic is the textile industry. Now please underline, the textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production. Okay, but the second textile industry is the second largest. Please underline, it is the second largest employment generator in India, in this country. Okay, it is the second largest employment generator in India. ठीक है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मतलब कि नौकरियां पैदा करने वाला जो इंडस्ट्री है, दैट इज़ योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फर्स्ट नंबर पे इज़ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इज़ द नंबर 1 जॉब्स प्रोवाइडर in this country. That is the largest employment generator, Indian Railways. After Indian Railways, this is the textile sector, textile industry, that is the second largest employment generator in India. Number 2, it also contributes it contributes 4% or more than 4% now. More than 4% in our total GDP, ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, हमारे कंट्री के टोटल GDP जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 4% से भी ज़्यादा जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। दैट्स वाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री. Please, it is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products. ठीक है ना, ये अपने आप में कंप्लीट इंडस्ट्री है जो अपना रॉ मटेरियल भी खुद से जनरेट करती है और साथ साथ अपने उसको बेचने का काम, उसकी पैकेजिंग का काम, एवरीथिंग इज डन इन इट्स ओन. That's why textile industry is the most important and one of the most important industries in India. And also it is second largest employment generator in this country. Next, number 3, कॉटन टेक्सटाइल्स. ठीक है, ये पूरा रब कर देते हैं हम. कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल. अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में. देखो बेटा, इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. आफ्टर द 18th century पावर लूम्स केम इनटू यूज. ठीक है ना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यू टू द कॉलोनियल पीरियड. ये सब आपको पता ही, आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें दे रखी है कि कॉटन इंडिया, आपको बताना चाहूँगा, इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट. थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट cotton textile producers of the world. ठीक है जी, दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स में से एक है हमारा देश. और दूसरी बात ये कि फ्रॉम द पास्ट 300 to 400 years, India's textile, that is especially the cotton textile, was one of the
finest qualities in the whole world. And due to this cotton textile, the Britishers came to India, and when they occupied India, their main target was the cotton textile industry. During the colonial period, the British used to export the cheap and fine quality of cotton as a raw material to England, and after manufacturing the cotton products, the cotton textile products used to sell in India. ठीक है ना। तो इससे हुआ क्या उनके अंग्रेज़ों के ऐसे करने की वजह से हुआ क्या कि उनकी कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई, और इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती गई, और अंग्रेज़ों के जाने के टाइम पर हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पिछड़ चुकी थी ब्रिटिश के मुकाबले। दैट्स वाई रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ यहाँ से फाइनेस्ट क्वालिटी का कॉटन ले जाते थे, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करते थे, वहाँ प्रोडक्ट्स बनाकर वापस यहीं लाकर महंगे दामों पर बेचते थे। उससे क्या होता था, उनको तो चारों तरफ से फ़ायदा हो रहा है, सस्ता रॉ मटेरियल भी मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई, सेल भी हो गई, तो उनको तो चारों तरफ से फ़ायदा था। पर हमारे यहाँ के फार्मर्स को भी बहुत नुकसान था जो कॉटन उगाते थे, प्लस हमारी यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान था जो कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। दैट्स वाई इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल got a very huge setback from the British, because all the British policies followed for the upgradation of the British industries and for the degradation of the Indian industry. So that's why colonial period was a very bad period for the Indian cotton textile industry. ठीक है जी। Now there are some data, please underline. The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. Please underline and write the question for 1 marks also for MCQs. When and where the first textile mill was set up in India? When and where the first textile mill was set up in India? Answer is in Mumbai 1854. In Mumbai 1854. Next, the two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for the cloth in UK, and hence they gave a boost to the development of the cotton textile industry. ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे, या फिर उस चैप्टर में पढ़ लिया होगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि ना अंग्रेज़ों ने इंडियन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर ओन इंडस्ट्री was getting destroyed due to the bombings by the enemy nations, and that's why they transferred their whole manufacturing line into India, and from India, and due to this the manufacturing of cotton textile in India got a boost, and और वो क्यों किया अंग्रेज़ों ने, ताकि यहाँ से सामान बनाकर अपने कंट्री की अपनी आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को दे सके। दैट्स वाई अंग्रेज़ों को उसमें भी अपना खुद का स्वार्थ था, बट ड्यू टू देयर मतलब उनके इस काम की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गॉट अ बूस्ट। तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनने लगी, एक बूस्ट मिलने लगा आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट, today there are nearly 1600 cotton and human made fiber textile mills in India. About 80% of these are in the private sector, and rest are in the public cooperative sectors. Apart from these there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. ठीक है ना। आज आपको पता, आज कहते हैं टुडे हमने देखा कि इंडिया आज की रेट में द इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, और आज की रेट में 1600 से भी ज़्यादा, इवन 2000 से भी ज़्यादा जो है हमारे कंट्री में
कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, एंड ऑल्सो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है, साथ साथ कॉटन बनाने की, कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज भी बड़ी अच्छी हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? दैट इज ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. In the early years, cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of, अच्छा बेटा एक क्वेश्चन लिख लो, राइट द क्वेश्चन. Why cotton textile industries? Why cotton textile industries were mostly? Why cotton textile industries were mostly concentrated in the states of Maharashtra and Gujarat during the early years for 3 marks. Underline the answer please. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the states of Maharashtra and Gujarat because of, underline please, number 1, availability of raw cotton. Please underline first point, availability of raw cotton. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, हेडिंग क्या बनेगा, the concentration of cotton textile industry in Maharashtra and Gujarat. अब इसमें नंबर 1 क्या रहा बेटा, सबसे पहला नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन. ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन. आपको पता ही है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था पहले भी, that this region, the region of Maharashtra and Gujarat has the black soil. ठीक है ना, black soil, and black soil is very good for the cotton crop. ठीक है, so that's why cotton is mostly grown in the states of Maharashtra and in some parts of Gujarat also. So that's why due to the availability of raw cotton and due to the very good production of raw cotton in these states, most of the cotton textile industries were located in these parts in the early years, not now, in the early years. आज के टाइम में तो due to the very developed means of transportation, तो आज के टाइम में हमारे देश में कई जगह पर कॉटन इंडस्ट्री लग चुकी है, बट इन द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर थी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉयल है और ब्लैक सॉयल कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री लगती थी. नंबर 2, मार्केट, इसकी मार्केट भी ज़्यादातर इधर ही थी. आप देख सकते हो गुजरात एंड महाराष्ट्र बोथ आर द कोस्टल स्टेट्स, दोनों समंदर के किनारे, महाराष्ट्र भी समंदर के किनारे हैं, गुजरात भी समंदर के किनारे, तो दैट्स वाई यहाँ पर कॉटन उगाना, ठीक है, फिर कॉटन उगाकर उसका मैन्युफैक्चरिंग करना फैक्ट्रीज लगाकर, और फिर मैन्युफैक्चरिंग से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है. इसकी वजह से क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट के खुद के अंदर भी डोमेस्टिक मार्केट भी है और यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुँचा जा सकता है बिकॉज ऑफ द सी शोर, क्योंकि समंदर के किनारे. दैट्स वाई मार्केट जो है बिल्कुल साथ ही अवेलेबल है महाराष्ट्र के और गुजरात के. ठीक है ना, तो आप चाहे महाराष्ट्र के अंदर ही बेच लो, डोमेस्टिक मार्केट बेच लो, चाहे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो फॉरेन कंट्रीज, दोनों जगह अवेलेबल थी. तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न के मार्केट भी दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पर थी. मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पर मुंबई जैसा शहर था, ठीक है, बॉम्बे है यहाँ पर, यहाँ इधर अहमदाबाद है, ठीक है ना, आप लिख सकते हो मार्केट में आप पा सकते हैं बॉम्बे एंड अहमदाबाद. अब आपको पता है बॉम्बे भी बहुत बड़ा शहर है जिसे अंग्रेज़ों ने बसाया था फॉर एक्सपोर्टिंग देयर रॉ मटेरियल. ठीक है, और अहमदाबाद भी काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है. बॉम्बे महाराष्ट्र में, अहमदाबाद गुजरात में, तो दैट्स वाई मार्केट भी ऑलरेडी अवेलेबल है और फॉरेन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो. दैट्स वाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री वॉज मोस्टली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन द अर्ली डेज. नंबर 3, ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर बड़ी अच्छी, ठीक है, ड्यू टू द डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर ज़्यादातर था. यहाँ से आप अपने कंट्री के अंदर भी सामान भेज सकते हो और कंट्री को फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो ड्यू टू सी शोर, तो ड्यू टू द डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़. ठीक है जी. नेक्स्ट नंबर 4, लेबर. ठीक है जी, नंबर 4 में लेबर.
यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बॉम्बे में और अहमदाबाद में ऑल ओवर इंडिया से लेबर आती है काम करने के लिए ड्यू टू द बिग इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो इजीली लोगों को लेबर इजीली अवेलेबल होती है काम करने के लिए। एंड नंबर 5 मॉइस्ट क्लाइमेट। नंबर 5 मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, मॉइस्ट क्लाइमेट आपको पता है, हमने ये भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, अपने उसमें सॉइल्स वाले चैप्टर में, कि मॉइस्ट क्लाइमेट जो है दैट इज़ वेरी गुड फॉर द क्रॉप ऑफ कॉटन। ठीक है ना, मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो ब्लैक सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा है, और ब्लैक सॉइल के लिए अच्छा है तो इसका मतलब कॉटन क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है, और जिसकी वजह से कॉटन क्रॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में उगाई जा सकती है। और अगर क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी कॉटन क्रॉप उगाई जा सकती है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री भी तो वहीं लगेगी जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा हो। तो मॉइस्ट क्लाइमेट इज अवेलेबल इन दो स्टेट्स, दैट्स वाई in the early days of independent India, most of the cotton textile industries were set up in the states of Maharashtra and Gujarat. ठीक है, these were some of the reasons. ठीक है जी, और इन सब की वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में ग्रोथ भी हुई कॉटन इंडस्ट्री में। धीरे धीरे करते करते इंडिया के और भी कई स्टेट्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगती है, इंक्लूडिंग द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली ऑल्सो। This industry has close links with agriculture and provides a living to the farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving and dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing. The industry's created demand supports many other industries such as chemicals and dyes, mills, stores, packaging materials and engineering works. बिल्कुल सही है। देखो बेटा, ये जो इंडस्ट्री है ना आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हमने अभी पढ़ा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन दिस कंट्री। अब देखो ऐसा क्यों है, देखो हाउ इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। आई एम रबिंग दिस नाउ। ठीक है, देखो जब भी हम लोग कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं, अब सपोज करो मैंने कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाई। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाई। अब इसको कॉटन टेक्सटाइल को लगाने के लिए सॉरी ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री लगी। अब यहाँ पर मैं अगर कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर कॉटन अच्छा होगा तो इसका मतलब अगर सपोज करो कॉटन प्रोडक्शन अच्छी है तो इसका मतलब फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, फार्मर्स को जॉब मिलेगी, ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होगी। दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कॉटन लगाऊंगा तो मेरे को वीविंग करने के लिए लोग चाहिए होंगे, गिनिंग करने के लिए लोग चाहिए होंगे। ठीक है, स्पिनिंग। ठीक है जी, उसके बाद स्पिनिंग के बाद क्या आएगा, ये नेक्स्ट होता है यस डाइंग एंड डिज़ाइनिंग। इन सारे कामों के लिए मुझे लोग चाहिए होंगे, तो जिसकी वजह से देखो कॉटन की प्रोडक्शन, पहले तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए फार्मर चाहिए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉटन उसकी वीविंग करने, हमें कॉटन से धागा बनाना पड़ेगा, उसके लिए लोग चाहिए। गिनिंग होता है उसके धागे, मतलब कि फैब्रिक उससे बनाना, कपड़ा बनाना। स्पिनिंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ें लोगों के लिए मुझे लोग चाहिए होंगे, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की अलग से फैक्ट्री लगेगी। अब देखो अगर सपोज करो डाइंग लगा रहे हैं हम लोग, डाइंग करने के लिए फैक्ट्री चाहिए, तो इसका मतलब ये डाइंग इंडस्ट्री जो है ना अपने आप में केमिकल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देगी। केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना, डाइंग इंडस्ट्री मतलब आपको कपड़े को कलर करना है। ठीक है ना, कलर करना। अब कलर कैसे बनता है, केमिकल से। तो डाइंग इंडस्ट्री और डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री जो है अपने आप में केमिकल्स को और बहुत सारे डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है। ये केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है और ये डिज़ाइनर इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, ये ना सिर्फ फार्मर्स के लिए अच्छी है बल्कि और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदा पहुँचाती है। तो दैट इज़ द रीज़न दैट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑफ द country, because it gives employment not only to the farmers but also many of the related industry, whether these are of weaving industry, forginning industry, spinning, dyeing, chemical industry, designing industry, most of the related industry। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है इसके साथ रिलेटेड है, जिसमें काम करने वाले लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसके साथ से। तो दैट इज वाई कॉटन टेक्सटाइल इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द कंट्री। क्लियर। नेक्स्ट
While spinning continues to be centralized in the states of Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide the scope of incorporating traditional skills and designs in the weaving of cotton, silk, zari, embroidery, etc. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कहते हैं हालांकि इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन जो है आज भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जो स्टेट्स में है, बिकॉज यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है, लेकिन इसके अलावा ये जो बाकी के काम है ना, हमने देखे वीविंग, गिनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, ये और भी कई स्टेट्स में काम ये होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में के अलावा आपके गुजरात में, और उसके अलावा मध्य प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब स्टेट्स में भी ये सारे काम किए जाते हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन सब स्टेट्स, इन सब फैक्ट्रीज़ के लगने की वजह से बहुत सारे लोगों को इन सब स्टेट्स में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। तो कॉटन टेक्सटाइल ना सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है, बल्कि इन सब कामों की वजह से बाकी के स्टेट्स में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑफ द कंट्री। द हैंडस्पून खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ बेटा, राइट नीचे लिखा हुआ, उसको अंडरलाइन कर लो। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, बोल्ड करके लिखा है, प्लीज अंडरलाइन। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम। प्लीज क्वेश्चन टिक कर लो, इसका आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले टिक कर लो क्वेश्चन को। इसके आगे देखो बेटा, इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है जी, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका। तो इंडिया इन सारे कंट्रीज़ को कॉटन का एक्सपोर्ट करता है, और कॉटन से बने हुए यार्न का एक्सपोर्ट करता है, और बाद में जो कपड़ा मैन्युफैक्चर किया हमने उसका भी एक्सपोर्ट करता है। तो दैट्स वाई ये हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देता है। तो दैट्स वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री न सिर्फ खुद में अपने आप में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, बल्कि बहुत सारी रिलेटेड इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, इंक्लूडिंग ऑल दीज इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। दैट इज व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन दिस कंट्री। ठीक है बेटा, दिस वॉज अवर टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टिल यू हैव एनी डाउट्स ना, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, और प्लीज़ टिक द मैप ऑन पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 पर जो मैप है इसको आप टिक कर सकते हो, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंटिन्यू अवर टॉपिक, दैट इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।